Okay, so all of us are ready. We'll begin with a guided meditation activity. So, what you all have to do is that whatever I speak, you have to imagine that it is happening with you and you are doing it. Okay, so you all can close eyes, sit nicely, and listen to whatever I'm saying. Okay, thumbs up. Ready? Swati Mataji and Abhishek Puri have just joined. We are doing a guided meditation program. This is an ice-breaking activity. Please switch on your videos, Abhishek Puri and Swati. Eyes closed. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Eyes closed. And imagine that you are sitting at your home in a nice chair, very nice, comfortable chair. It's morning time and you are getting ready for work. आपको काम पे जाना है और आप उठ के तैयार हो रहे हो, आप रेडी हो गए हो और आप घर से बाहर निकलने वाले हो। तभी आपको याद आता है कि अरे एक चीज तो रह गई। क्या है वो? व्हाइट कलर का कोट। आप तो डॉक्टर हो और बहुत सीनियर डॉक्टर हो। आप अपना कोट उठाते हो और अब आप जा रहे हो हॉस्पिटल के लिए। आप हॉस्पिटल पहुंच गए। अब आप हॉस्पिटल के अंदर घुस रहे हो। बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स, नर्सेस, दूसरे डॉक्टर्स सब आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप भी सबसे पूछ रहे हो आप कैसे हो। पेशेंट्स भी आपको जानते हैं, आप एक बहुत फेमस डॉक्टर। तभी एक जूनियर डॉक्टर आते हैं और आपको आपका शेड्यूल देते हैं और वो आपको बताते हैं कि आपको अभी एक ऑपरेशन करना है अर्जेंटली। और आप कहते हो ओके रेडी। आप जल्दी से रेडी होते हो ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए। आप ऑपरेशन थिएटर में जो गाउन होता है वो पहन रहे हो, मास्क पहन रहे हो और तभी आप ऑपरेशन थिएटर में एंटर कर रहे हो। सब चीज रेडी है। तभी आप अब बोल रहे हो ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए। जो असिस्टेंट डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, वो बोल रहे हैं सर मैम पेशेंट की हालत सच में बहुत खराब है, आप ही इसको बचा सकते हैं बस। और आप बोल रहे हो डोंट वरी, मैं इस पेशेंट को बचा लूंगी। तभी आप सबको कहते हो रेडी, शैल वी स्टार्ट, एंड अदर पीपल टेल यू यस यस मैम प्लीज स्टार्ट। क्या एनेस्थीसिया दे दिया पेशेंट को? यस यस एनेस्थीसिया तो दे दिया है, तो पेशेंट ऑलरेडी सबकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। आप रेडी हो और आपने अपने ग्लव्स पहन लिए। अब जो स्टाफ आपको टूल्स देते हैं तो आप उनको कह रहे हो यस प्लीज गिव मी द टूल बॉक्स। और वो नर्स बोल रही है मैम वो तो नहीं है।
आप बहुत हैरान हो क्या? क्या बोला? यस मैम, कैन यू डू दिस ऑपरेशन विदाउट द टूल्स? प्लीज ओपन योर आईज. Yes, please. What do you have to say, all of you? Anybody? Bhavmai Mataji, Gauri Mataji, Neha Mataji, switch on your videos, everybody, please. What was your experience? क्या था ऐसा? Anybody? समथिंग इज इनकम। जी. वहाँ पे भी थोड़ा डेंजरस था कि जब एकदम टाइम इतना पास है, पेशेंट की हालत इतनी खराब है और टूल्स ही नहीं है। टूल्स ही नहीं है, हाँ. तो कैसा फील हुआ आपको? बहुत बुरा लगा। बुरा लगा. ओके. हेल्पलेस लगता थे। हेल्पलेस. कमाल गोविंद जी. तो मेरा फर्स्ट है कि we were sitting at home in the chair, but once we were serious on that, we could actually go through as a doctor. That was first of all surprising for me, which I am not. Second, मेरे जो childhood पे hospital गया हूँ उस पे impression आ गया, like is more like the scene of the hospital was also the hospital near my home in the childhood, and walking inside that, and some impressions, the visualization, some hospital has to come, so that a real hospital also came where you're walking in, and Yes. so that was. Yes. Okay. So how did you feel, Prabhuji, when the nurse told you that you will not get the tools? No, I was just waiting what conversation I can have with her. That's all. There was no feeling. So I was like, Weird. how It do we was solve? weird. Then you abruptly said, it was weird. And you also said, open your eyes. That was weird because I was thinking I will have a अभी बीच में एकदम से आँख खोलने को कह दिया मैंने. That is another weird thing. Yes, so that was more like the conversation has to I continue, took kind of you a to a feeling. seat and abruptly I brought you back. I got And you you back. said open the eyes. So that was the feeling. Yeah. Yes, exactly. हिमानी माती जी. माता जी जैसे प्रोजे ने बताया सेम यही था, लाइक कि पहले डॉक्टर बन गई मैं कुछ मिनटों के लिए, तो वो बहुत सरप्राइजिंग था कि हाँ रियल में मैं फील कर रही थी कि मैं डॉक्टर हूँ, सब मुझे ग्रीट कर रहे हैं, वो अच्छा लग रहा था। बट एकदम से अचानक से पता चला कि अभी ऑपरेशन है, तो वो थोड़ा पैनिक वाली सिचुएशन हुई पहले मेरे लिए। फिर जब मैं रूम में पहुंच गई थी रेडी होकर, तब मैं काम डाउन हुई, मुझे सब ठीक लगा। ओके, आई एम डूइंग इट एंड आई विल डू इट एंड आई कैन डू एनीथिंग उस टाइम पर, मतलब मैं पेशेंट को ठीक कर सकती थी, तो वो वाली फीलिंग रही। बट जैसे आपने बोला कि हाँ वो मतलब इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो आई वाज लाइक कि क्या शॉकिंग, मतलब वो शॉकिंग था और मुझे थोड़ा एंगर भी आया। और उसके बाद लाइक आपने एकदम से बोल दिया कि अब आप आईज ओपन करो, तो वो बहुत इनकम्प्लीट था। लगा कि अभी आगे और होना था, अभी पता चलना था कि पेशेंट बचा कि नहीं बचा, मतलब वो चीज होनी चाहिए थी, तो वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगा। अच्छा, अगर ये रिकॉर्डिंग कोई यहाँ से सुनना शुरू करे, जब हिमानी माती जी ने बोलना शुरू किया कि फिर मैं रेडी भी थी, मैं हॉस्पिटल गई थी, तो वो लग रहा है रियलिटी में ये सब कुछ हुआ, क्योंकि जिसने शुरू का रिकॉर्डिंग नहीं सुना कि मेडिटेशन करना है, हमें इमेजिन करना है कि हम डॉक्टर बन गए हैं, तो उनको लगेगा ये क्या हो रहा है ना? तो इससे हमें यस स्वाति माता जी, फर्स्ट आई लिसन टू एवरीवन देन आई स्टार्ट. माता जी, माता जी वही जैसे मानी माता जी ने बताया, मेरा भी वही रहा कि अच्छा लगा बहुत कि वाइट कोट पहन के बड़े से हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो मेरे माइंड में मेदांता हॉस्पिटल ही आएगा डायरेक्ट कि मैं वहां जा रही हूँ, वाइट कोट पहन के सब ग्रीट कर रहे हैं।
बट सडनली जब पता लगा ऑपरेशन करना है तो देन मेरे माइंड में सबसे पहले आया कि ओ कृष्णा, अब जो करूँ मैं अंदर जाके वो सब सही हो। फिर जैसे ही टूल बॉक्स नहीं मिला तो तब वही थोड़ा गुस्सा भी आया, थोड़ा सैड भी हुई कि अभी क्या करना है, कैसे करना है। बट फिर वही एकदम से आँख खोल के लगा कि आगे क्या, जैसे वो होता है ना, सीरियल्स होते थे पहले, सस्पेंस सस्पेंस वाले, तो वैसी वाली हाँ, फीलिंग सस्पेंस में छोड़ याद दो, करने के नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या होगा। राइट राइट। जी हाँ जी। ओके, गुड। नर्सिंग अवतार जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यस। पहला तो जब आपने इमेजिन करवाया तो हमारा ये था कि आप कुछ ना कुछ लेसन्स डिराइव करवाओगे बाद में। यस। तो जब आपने, तो मेरी वाइफ का ये रियलाइजेशन ऐसा लगा उनको कि जब आप बोले कि विदाउट टूल्स हमको ट्रीट करना है, तो शी वाज थिंकिंग कि मैं भी माता जी अभी ये लेसन डिराइव करेगी कि बच्चा तो हो गया अभी, बिना टूल्स का हम कैसे रेस करें, उस एंगल में आप शायद लेके जाएंगे कि the parent of this Goloka kids is like the tools by which we treat the patient. So अभी टेबल पे तो आ गया है द वेट। सो ये एक पहला था। दूसरा एक था कि शायद कि नर्स ने इन्हें बोला कि टूल्स नहीं है, उसने बोला कि टूल्स के बिना आपको करना है। सो मे बी वी थॉट कि नेक्स्ट लाइन विल बी कि ऐसा कुछ कि शायद बिना टूल्स का कुछ करना है, मीन्स इवन विदाउट using the normal tools you can treat the patient in more better way, ऐसा कुछ इन लेसन शायद आप डिराइव करने वाले थे, ऐसा कुछ we thought. So we are waiting for the lessons which you will derive from this. Oh, very good, very good. Okay. दीक्षा माता जी। हरे कृष्णा माता, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। मतलब पहले तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई कि मैं मतलब जस्ट लाइक मैं डॉक्टर बन गई इतनी आसानी से। मतलब बहुत वाव वाली फीलिंग थी मेरे लिए स्टार्टिंग में कि मतलब मॉर्निंग में भी फ्रेश मॉर्निंग है और मैं इतनी मतलब कंफर्टेबल उठ पा रही हूँ और सब पे वो डॉक्टर वाली फीलिंग तो मेरे लिए जस्ट वाव थी। फिर उसके बाद जब ऑपरेशन थिएटर वाली ना, वो मेरे लिए सरप्राइज एंड शॉकिंग लगा। फिर मुझे थोड़ा सा ये लगा कि शायद अभी आप बोलोगे कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं विदाउट मतलब किसी एनी टूल्स से भी हम ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं। तो जस्ट आपने बोलिए आईज ओपन करना है, तो वो और भी ज्यादा शॉकिंग हो गया कि अब क्या होगा। तो शॉकिंग लगा और थोड़ा सा वाव वाली फीलिंग आई स्टार्टिंग। थैंक यू माता जी। Okay, very good, very good. Thank you for sharing all your responses. तो यस, हमने ये एक्टिविटी डेफिनेटली इसीलिए करी थी कि हम कुछ समझे इस चीज से। और नरसिंह अवतार जी ने जैसे बताया कि हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि गोलोक किड्स होम स्कूल में कुछ ऐसे टूल्स मिल रहे हैं जिससे कि पेरेंटिंग इजी हो जाए। But here I am going to relate this to our very important and the most important topic which we are focusing at GKH, that is reading. हम अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाना चाहते हैं और वो सारी वो वाव फीलिंग के साथ ही स्टार्ट करते हैं। हम बच्चे को बहुत अच्छे से बताते हैं, फिर अब स्कूल जाएंगे, नई बुक्स मिलेंगी, नया बैग होगा, फिर बहुत पढ़ाई करेगा मेरा बच्चा, बड़े होके बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बच्चा बनेगा, है ना। तो वी गिव दिस वाव फीलिंग टू आवर चिल्ड्रन कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बट व्हेन इट कम्स टू रियल स्टडीज, वहां पे शॉक मिलता है कि वो डॉक्टर वाली वाव फीलिंग तो आ गई, ओ वाव, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ सीनियर डॉक्टर, आई एम गोइंग इनटू द हॉस्पिटल, आई हैव टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, एवरीबॉडी इज विशिंग मी, एवरीबॉडी इज अंडर मी, इट गिव्स अ वेरी वाव फीलिंग। लेकिन जब टूल्स ही नहीं है तो मैं क्या ऑपरेशन करूं, ठीक है। तो जब प्रॉपर रीडिंग के टूल्स ही नहीं है, बच्चा क्या पढ़ेगा। आई वॉन्ट टू ब्रिंग यू टू दैट एक्सपीरियंस कि वो कितना, मतलब पहले एकदम से बहुत अच्छा फील हुआ, यस 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 समथिंग अमेजिंग इज गोइंग टू हैपन। लेकिन जब रियल चीज हुई तो वहां पे एकदम से
लाइफ डेथ सिचुएशन, ये क्या है? मेरी वजह से ही तो कोई मर तो नहीं जाएगा, मेरी वजह से ही तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो reading without giving proper pre-reading skills to children, it is sometimes very very meaningless, sometimes it is very very boring। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे होते कि उनको डिफिकल्टी क्या आ रही है, और बड़े लोग बोलते रहते हैं अलग अलग चीजें, अरे इसका मन नहीं लग रहा है, ये बहाने कर रहा है, ये पढ़ना नहीं चाहता, स्कूल नहीं जाना चाहता, इसको कुछ समझ नहीं आ रही, ये नालायक है ये। और वहां पे क्या है कि सारे स्कीमास डेवलप। ठीक है, तो हमने स्कीमास वाला टॉपिक कर लिया, हमने स्क्रिबलिंग वाला टॉपिक कर लिया है। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे रीडिंग अपने बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाए, एक रीडिंग का एटमॉस्फियर क्रिएट कर पाए घर के अंदर, जिससे कि ये वाली जो स्किल है ये नेचुरली डेवलप हो, फोर्सफुल ना हो। क्योंकि अगर रीडिंग का गुड एक्सपीरियंस मिल गया इस एज में, तो आगे पूरा लाइफ सेटल्ड है, हर चीज हम इसके ऊपर खड़ा कर सकते हैं। और हम जो बार बार सुनते हैं, प्रभुपाद जी ने बोला है बुक्स आर दी बेसिक, तो बेस बनाना तो बहुत ही एसेंशियल है ना, उसी के ऊपर तो हम सारी चीजें डेकोरेट करेंगे। Okay, so I just share the presentation. Make sense? Give me some reactions, yes or no? Yes. Yes, Mataji. Can you all see the presentation? अभी तो माताजी विजिबल नहीं है, आ रहा है कि शेयरिंग आगे आगे। So when we talk of learning, reading is the key. Right? यहाँ से हमारा सब चीज ओपन होगा। That is why रीडिंग और प्री रीडिंग स्किल्स पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के सेशन में हम क्या सीखेंगे कि एक रीडर की डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या होती हैं, रीडिंग के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्री रीडिंग एंड प्री राइटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, बिफोर रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग एंड आफ्टर रीडिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, हम कैसे अपने घर में रीडिंग एटमॉस्फेयर बनाएं, और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने की। ठीक है, आधा टाइम ऑलरेडी निकल चुका है, अगर आज ये सेशन नहीं कंप्लीट हुआ तो हम इसको नेक्स्ट वेडनेसडे कंटिन्यू करें। What can you see here? Butterfly. Butterfly. Okay. Anybody else? Numbers counting. Anybody else? बिंदु। और बटरफ्लाई एक ही जने को दिखी है? Insect type and butterfly. दिख रही बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, इंसेक्ट। इधर क्या दिख रहा है? भाषा, Language है उड़िया भाषा। ओडिया नहीं, तमिल है हमारा। तमिल, उड़िया, तेलुगु, जिनको नहीं पता उनके लिए सब सेम है।
शायद ABCD जैसा है। हाँ, ABCD। ABCD, ये क्या है? चाइनीज लग रही चाइनीज है। कोरियन, जापानीज। चाइनीज कौन पढ़ सकता है जापानीज इसको? चाइनीज कौन पढ़ सकता है? क्या है लेटर्स? चाइनीज कैन एनीबडी रीड? चीनी भाषी नो माता जी। अगर हम पढ़ नहीं सकते तो हमारे लिए क्या है? Some nice सिंबल्स art है माता जी थोड़े से। सिंबल्स हैं, वेरी गुड। symbols. ये क्या है? सिंबल्स हैं सिर्फ हमारे लिए, ठीक है। तो एक्चुअली बच्चे जब देख रहे हैं, आप उनको ABCD दिखा रहे हैं, उनको ऐसे दिख रहा है। हम उसमें उन सिंबल्स में मीनिंग डाल रहे हैं, साउंड डाल रहे हैं, ठीक है। और बटरफ्लाई वाले एग्जाम्पल से हम क्या सीख रहे हैं कि हम डिकोड कर रहे हैं लैंग्वेज को। लेटर्स और नंबर्स, ये सब चीजें क्या होती हैं, हमें यहाँ पे कनेक्ट करने आइडियाज। बटरफ्लाई में आप कनेक्ट कर रहे हो ना डॉट्स को, उसको कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो, उसकी सेंस बना रहे हो और उसको डिकोड कर रहे हो। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडिंग। हम ये चार चीजें एक साथ दे रहे हैं बच्चे को। हमें ये ध्यान नहीं है, हम इतना कॉन्शियसली नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम ये चार चीजें बच्चों को दे रहे हैं जब हम रीडिंग सिखा रहे हैं। एम आई करेक्ट? यस यस माता जी। तो जब हम ये चार चीजें अपनी करेक्ट कर लेंगे तो हम सही सेंस में सबसे बेटर उससे हम बच्चे को रीडिंग के लिए रेडी कर सकते हैं। ओके, जब जो छोटे बच्चे हैं 1 ईयर 2 ईयर ओल्ड वाले 3 ईयर ओल्ड वाले, जो स्पेलिंग्स अभी नहीं जानते, जो फोनोग्राम्स नहीं जानते, वो कैसे रीड कर रहे हैं? तो वो आइडिया कनेक्ट कर रहे हैं कि ये ऑरेंज लिखा है, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं कि ये पूरा जो लिखा हुआ है ये ऑरेंज लिखा हुआ है, ये मैंगो लिखा हुआ है, ये एप्पल लिखा हुआ है, ये ब्लू कलर लिखा हुआ है। उसका वो सेंस बना रहे हैं, एक पूरे वर्ड को डिकोड कर रहे हैं। यहाँ पे हम लेटर्स को डिकोड कर रहे हैं, उधर वो क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ड को डिकोड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सिखाया एक्चुअली बच्चों को? पहले हमने वर्ड डिकोड करना सिखा दिया, उसके बाद हम साउंड सिखा रहे हैं और लेटर्स को डिकोड करना सिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम उनको कॉम्प्रीहेंड करना सिखाएंगे, फिर हम उसकी सेंस बनाना सिखाएंगे जब हम वर्ड्स पे प्रॉपर आएंगे फोनोग्राम्स के बाद। और फिर इन द एंड वो आइडियाज को कनेक्ट करेंगे जब उनको वर्ड्स सेंटेंसेस में डाले जाएंगे, ठीक है। इज दिस ऑल क्लियर? व्हाट डज यस रीडिंग मीन एंड हाउ वी आर गोइंग अबाउट इट, कि हम कैसे सिखा रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स हम इन्वॉल्व कर रहे हैं और क्या क्या स्टेप्स हम प्लानिंग के अंदर डाल रहे हैं जब आपको लेसन प्लान्स मिल रहे हैं। एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जो जो स्टेप्स हम आपको बना के दे रहे हैं आप उसको बस फॉलो करते जाओ, आगे जाके बच्चा रीडिंग कर लेगा, ठीक है। तानिया माता जी, विल यू स्टार्ट फ्रॉम हियर? वुड यू लाइक टू स्पीक? Yes, 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 ma'am. Hare Krishna, everyone. My voice is clear, Mataji. It's fine. Volume seems to be low. Okay, 1 second. Now it's fine? Yeah, Yes. much better. Yes. Okay, let's start. So these are Charles' reading stages.
how we can unlock the code, how we can begin with the reading. So there are 5 stages. Stage 0 is pseudo reading, that is preschool stage. है ना? Stage 1 is decoding, age 6 to 7 years. Then stage 2, confirmation and fluency, 7 to 8 years. Next stage is reading for learning the new, 9 to 13 years. Fourth stage, multiple viewpoints, and then construction and reconstruction stage, above 18 years. ठीक है, हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे आगे. Next slide. Yes. So pseudo reading is a mother must read daily while pregnant. अगर हम प्रहलाद महाराज का भी एग्जाम्पल देखते हैं तो उन्होंने सारा भगवान के बारे में सब कुछ अपने मदर के वूम में दिया था, है ना? माता के गर्भ में ही उन्होंने नारद मुनि से जो उन्होंने श्रवण किया था वो सब जान लिया था. तो हमें रीडिंग जो स्टार्ट करनी है जब हम प्रेग्नेंट है उसी टाइम पे करनी है, क्योंकि तब भी बच्चा एक एक चीज सुनता है ना? हमारे पास इतना बड़ा एग्जाम्पल है फ्रॉम अवर शास्त्रास. तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? प्री रीडिंग एक्सरसाइजेस, डिफरेंट प्री रीडिंग एक्सरसाइजेस करा सकते हैं बच्चों को. एंड देन रीडिंग टू बेबीज. बच्चों के बेशक बच्चे अभी रीड नहीं कर सकते, मतलब हमारे माइंड में आता है ये तो बहुत छोटा है, ये तो पढ़ ही नहीं पाएगा, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, इतनी डिफिकल्ट स्टोरीज हैं, इतने बड़े बड़े वर्ड्स हैं. बट नहीं, हमें रीड करना है बच्चों के आगे. इवन व्हेन द बेबी इज सो स्मॉल तब भी हमें रीडिंग करनी है. क्रिएटिंग अ रीडिंग एटमॉस्फेयर एट होम. घर पे ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना कि बच्चे रीड करने में इंटरेस्ट लें, है ना? तो हमें रीडिंग एक्सपीरियंस बहुत फनफुल बनाना है. तो जब हम प्रेगनेंसी के टाइम पे रीडिंग डेवलप करते हैं, मतलब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? बच्चे के साथ बॉन्डिंग एक डेवलप कर रहे हैं अपनी, है ना? बच्चे के साथ जब हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, या हम कुछ भी रीड कर रहे हैं उसको सुना रहे हैं, तो एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है मदर और बेबी के साथ. And babies whose mother read and sing to them while they are still in the womb learn recognize sounds and rhythms of language very early. बहुत जल्दी वो sounds और language को समझ पाते हैं, बहुत early उनमें reading interest develop हो जाता है. अगर आप womb में ही, गर्भ में ही बच्चे को आप रीडिंग्स करते हो उसके साथ में, है ना? प्री रीडिंग एक्सरसाइज बहुत छोटे बेबीज के लिए क्या क्या हो सकती है? क्रिएट अ कॉर्ड जिम. आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो, मतलब उस पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैंग हुए हुए हैं, है ना? उसमें आप देखोगे तो बच्चा डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है. और उसके अलावा मोर कलरफुल ऑब्जेक्ट्स यू कैन गिव. जैसे हम बच्चों को दिखाते हैं, छोटे छोटे टॉयज दिखाते हैं, कुछ भी दिखाते हैं ना. और फिर हमें क्या करना है? बहुत सिंपली, बहुत स्लोली उसके आगे लेफ्ट टू राइट और अप डाउन मूवमेंट में हम बच्चे को दिखा सकते हैं. तो उससे क्या होगा? उसका आई टू ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन भी वो होगा डेवलप. वो देखेगा एक एक चीज को बहुत ध्यान से. तो बेनिफिट ऑफ रीडिंग टू बेबीज, अ बेबी लर्न अबाउट कम्युनिकेशन व्हेन यू रीड टू हर. तो उसको समझ आता है कि हम क्या बात कर रहे हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं जब हम रीड करते हैं बच्चों के सामने. और उसकी वोकैबुलरी, सबसे बड़ी चीज, वोकैबुलरी इंक्रीज होता है. बच्चा कोई भी 1-2 वर्ड ग्रास्प कर लेता है. अगर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप स्टोरीज सुना रहे हो तो स्टोरीज के थ्रू रैंडम एक वर्ड उसने पिक कर लिया, है ना? और खेलते हुए वो रिपीट कर रहा है सेम वर्ड. तो वो वोकैबुलरी जो डेवलपमेंट होगा वो स्टोरीज के थ्रू भी होगा. तो अर्ली एज में अगर हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी सुनाना तो उनके वोकैबुलरी डेवलप होते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होते हैं. और उसके अलावा इट बूस्ट इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी. तो जब हम स्टोरी सुनाते हैं, हमने अभी जैसे स्टार्टिंग में आइस ब्रेकर एक्टिविटी की, हमने पूरा इमेजिन कर लिया कि हम डॉक्टर हैं. तो ऐसे ही जब हम स्टोरी सुनाते हैं तो बच्चे भी उनकी इमेजिनेशन पावर जो है वो इंक्रीज होती है. वो इमेजिन कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं कि स्टोरी में क्या हो रहा है ना? पूरा सीन क्रिएट कर लेंगे वो अपने माइंड में. तो इससे उनके क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव होगी.
और इसका बेनिफिट क्या है? रीडिंग इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड फोकस। तो खाली रीडिंग के लिए नहीं, और भी एक्टिविटीज में के लिए उनका कंसंट्रेशन और फोकस रहेगा। वो कोई भी एक्टिविटी और भी करेंगे तो उनमें फोकस डेवलप होगा, उससे इम्प्रूव होगा उनका फोकस। इट बिल्ड्स लिसनिंग स्किल्स इन बेबी, है ना, लिसनिंग स्किल्स डेवलप होगा, वो ध्यान से सुनेंगे एक एक चीज की आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। एंड दे गेट टू नो अबाउट द वर्ल्ड, उनको दुनिया के बारे में पता चलेगा जब हम उनको डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताएंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी बताएंगे, राइट। चिल्ड्रन हु आर रेड डेवलप एम्पैथी। जो अगर हम बच्चे के साथ कोई भी स्टोरी शेयर करते हैं, रीड करते हैं, उनमें एक फीलिंग ऑफ एम्पैथी डेवलप होती है, वो रिलेट कर पाता है उस स्टोरी के साथ कि हाँ ऐसा हुआ होगा उसमें। एंड रीडिंग डेवलप बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एज वेल, बॉन्डिंग भी उनकी क्या होगी, डेवलप होगी। और उससे क्या होगा, रीडिंग कैसी हो जाएगी और फन फिल्ड। जैसे समटाइम्स हमें बहुत बोरिंग लगता है रीड करना कुछ, तो बच्चों के लिए हमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि उनको बोरिंग ना लगे, मतलब वो और इनकरेज हो कि वो उनको रीड करना है। हमें प्रॉपर रीडिंग टाइम बना सकते हैं, बेड टाइम स्टोरीज का जैसे होता है रीडिंग टाइम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं। तो रीडिंग बेबीज के लिए इट्स वेरी बेनिफिशियल। ओके, तो अब हमें रीडिंग के बेनिफिट्स हमने देख लिया, अब हमें कैसे स्टार्ट करनी है। रीड बुक्स रिटन फॉर बेबीज। तो वी हैव ऑल द बुक्स, हमारे पास बहुत सारे बुक्स हैं, भगवद गीता, कृष्णा बुक, एवरीथिंग। बट वो बेसिकली हमारे पास बुक्स जो होती है वो किसके लिए होती है, एडल्ट्स के लिए, बड़ों के लिए, है ना। तो अगर आपको बेबीज को पढ़ाना है तो यू नीड दैट बेबी बुक्स जो स्पेसिफिकली बेबीज के लिए विद प्रॉपर पिक्चर्स, बिग बिग पिक्चर्स, है ना। इवन यू कैन सी कृष्णा बुक इज देयर फॉर द किड्स। उसमें बहुत सिंप्लीफाइड स्टोरी है और साथ में बहुत बिग बिग सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं। तो इफ वी वांट टू डेवलप रीडिंग स्किल फॉर द किड्स, तो हमें बच्चों वाली बेबी बुक्स ही रखनी चाहिए हमें अपने पास, है ना। स्टोरी बुक्स आर देयर, डिफरेंट स्टोरी बुक्स विद पिक्चर्स आर देयर, एंड कीप बुक्स विद इन बेबीज रीच। तो अगर हम प्लान कर रहे हैं कि अब स्टोरी टाइम है, तो बेबी को इनकरेज करना है कि चूज योर फेवरेट बुक, आज कौन सी बुक रीड करें, तो बेबी के रीच में होना चाहिए बुक। तो क्रिएट अ बुक शेल्फ और कॉर्नर जहाँ पे आप बुक्स रख सकते हो, जहाँ पे वो इजीली ही कैन टेक द बुक, है ना। तो ऐसा आप क्रिएट कर सकते हो। लेट द बेबी टच द बुक। तो ये नहीं कि आप बुक बचा रहे हो साइड में करके पढ़ा रहे हो कि फट जाएगी, ऐसा नहीं। लेट हिम टच, जो भी पिक्चर्स है पॉइंट आउट करने दो, उस पे पॉइंटिंग करने दो, फिंगर से टच करने दो, एक्सप्लोर करने दो बुक्स को। एंड अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो हम कार्डबोर्ड बुक्स जो आती है हार्ड बाउंड वाली वो ले सकते हैं, लेमिनेटेड पेजेस ले सकते हैं, और हम बुक के जो कॉर्नर्स होते हैं उसको टेप कर सकते हैं ताकि उसके शार्प एजेस वो ना हो, है ना। शार्प एजेस कभी कभी लग जाते हैं तो वो हम टेप टेप डाउन कर सकते हैं कॉर्नर्स में। तो लाइक दिस वी कैन क्रिएट अ बुक शेल्फ और बुक एरिया, ड्रॉर रख सकते हैं जहाँ पे बुक्स हैं, जहाँ से वो इजीली पिक करे, चूज कर सके। एंड डोंट मेक द बेबी स्टिल, हमें फोर्स नहीं करना कि बैठ के ही पढ़ेंगे, डोंट फोर्स हिम, ओके। जैसे उसको पढ़ना है लेट हिम डू, उसको लेट के पढ़ना है, उसको घूमते हुए पढ़ना है, एनीथिंग। डोंट फोर्स हिम कि नहीं यहाँ बैठो फिर पढ़ेंगे। जैसा उसका इंटरेस्ट है डू डू इट लाइक दिस, लेट हिम लीड ना। रीडिंग टू बेबीज, रीड विद इंथुजियाज्म। अगर हम बोरिंग सी वॉइस में रीड करेंगे तो हम खुद भी बोर हो जाते हैं, ऐसे तो हमें कोई कोई और भी कुछ सुनाए तो हम बोर हो जाएंगे। तो बहुत इंथुजियाज्म के साथ, और आपके एक्सप्रेशन, योर वॉइस मॉड्यूलेशन, सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि बेबी को बहुत इंटरेस्ट आए, वाओ कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। इनकरेज इंट्रैक्शन, बीच बीच में इंटरेक्ट कर सकते हैं,
छोटे छोटे चीजें आप बता सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, बच्चों को रिपीट करने को कह सकते हो। और यू कैन ऑल्सो रिपीट, आप एक पॉइंट को 2-3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो। फोकस ऑन बिग पिक्चर्स। वही अगर हम बेबी बुक्स लेते हैं तो उसमें बहुत ब्यूटीफुल, सुंदर, अट्रैक्टिव पिक्चर्स होती हैं, है ना। तो आप पिक्चर दिखाते हुए, पिक्चर पॉइंट आउट करते हुए यू कैन टेल द स्टोरी एंड फॉलो योर बेबीज लीड। तो इफ ही वांट्स कि लेट हिम स्टार्ट, तो उसे लीड, उसे चूज करने दो बुक कौन सी पढ़ेंगे आज, है ना। तो उसे स्टार्ट करने दो, स्टोरी में क्या होगा, है ना। लेट हिम स्टार्ट, लेट हिम लीड। उससे पूछ सकते हैं कि कहाँ बैठ के पढ़ना है, यहाँ पे हम रीड कर लें। तो लेट हिम स्टार्ट, लेट हिम लीड द रीडिंग टाइम एंड गिव द बेबी अ नाइस रीडिंग एक्सपीरियंस। तो इतना फन फिल, जैसे प्ले टाइम होता है बच्चों के लिए, वैसे आपका रीडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए बच्चों के लिए, सो दैट दे कैन टेक इंटरेस्ट कि आगे हम क्या करेंगे। आते जी नेक्स्ट स्लाइड। तो these are the 5 components of reading. First is phonological awareness, understanding and hearing sound in words. Okay, जैसे हम राइम्स सुनाते हैं और वर्ड्स बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो साउंड्स, दे आर रिलेटिंग विद द साउंड्स। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, ठीक है, क्या साउंड्स आ रही है, आप क्या कैसे राइम सुना रहे हो, वो सब फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में आ जाएगा। फोनिक्स, लेटर्स एंड साउंड्स को रिलेट करना, उसके लिए वी आर ऑलरेडी डूइंग द फोनोग्राम्स क्लास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज इज फ्लुएंसी। आफ्टर द फोनिक्स they will be able to read smoothly with proper expression and understanding, है ना, with proper expression. Then vocabulary, knowing and understanding the meaning of word, कि वो क्या पढ़ रहे हैं, that is vocabulary. And last is comprehension, understanding and thinking about what is being read. Okay, अंडरस्टैंड करना और उसके बारे में सोचना कि स्टोरी में क्या चल रहा है। So pre-reading skills. Next is pre-reading skills. Motivation to books. So how we can create that? Look at the books, the beautiful, colorful books. Or you can take building blocks as well. The colorful building blocks you can take. These are the activities to develop the reading skills. So pre-reading activities. Language skills. How we can develop that? Rhymes, different rhymes you can tell, or the basic conversation, है ना। Normally when we are talking, हम जब बात कर रहे हैं तब भी बच्चा कोई ना कोई वर्ड जरूर ग्रास्प करेगा, उसकी लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होंगे। कॉन्सेप्ट एंड अवेयरनेस टू प्रिंट। सो पजल्स, लाइक पजल्स जब सॉल्व करते हैं, इट इज एक तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पिक्चर्स, हाउ टू क्रिएट द होल पिक्चर, उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होते हैं पजल सॉल्व करने से। ट्रैकिंग विद द आईज, ओके, ऑब्जेक्ट और आईज जैसे हम ट्रैक करते हैं when we are writing, when we are scribbling, हमारी आईज भी हमारी फिंगर टिप्स के साथ मूव होती है ना। या हम किसी ऑब्जेक्ट से खेल रहे हैं या हम कुछ देख रहे हैं तब भी, तो ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट मैचिंग, डिफरेंट सेम कलर ऑब्जेक्ट्स को मैच करना, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद सिमिलर यू कैन से थिंग्स। तो ऑब्जेक्ट मैचिंग इज देयर, सेम ब्लॉक, सेम कलर ब्लॉक्स को मैच करना, तो कलर्स भी हो सकता है, और सिमिलर थिंग्स, स्मॉल टॉयज मैच करना, स्मॉल टॉयज इन वन प्लेस, है ना, सॉफ्ट टॉयज इन वन प्लेस, like this, object matching. और next is picture matching, picture relate करके then matching on the paper. Next is letter knowledge, naming things, naming the different objects at home. And phonics awareness, sound discrimination activity, different sounds for the words, है ना,
Next stage is there. Stage 1 is decoding. Age is 6 to 7 years. So they attempts to break the code of print. है ना, decoding अभी हमने माथा जी ने भी बताया. तो हमें how we can break the code of print, how it is written and what it is written. Okay, कैसे लिखा गया है, कैसे पढ़ना है, और words क्या क्या हैं उसमें. Awareness of sounds and symbols. Awareness of different sounds and symbols, sounds and the words. जब हम letter और sound का relationship, जब sound awareness होगी, then we can join and link with the words. Join the letters to make the proper word. Synthetic phonics, learn individual letter sound. हमने sound सीख ली हर letter की. Every single letter sound सीख के हमें उसको blend करने का try कर रहे हैं. अगर हमने क की सी की साउंड सीखी, ए की साउंड सीखी, टी की क एट, so sounds जोड़ के when we are trying to make the word, that is synthetic phonics. Word building games, making words. Okay, there are, you can take the letter cards and join them to make a word. There are different word building games there, or word matching games are also there. Word with the object. तो इवन हमने अभी प्री रीडिंग एक्टिविटीज प्लानर में भी वी हैव एडेड दिस कि पिक्चर ऑब्जेक्ट के साथ हम वर्ड कार्ड्स मैच करा रहे हैं. प्लेजर इन ओरल लैंग्वेज, so that will have listening, speaking, rhyme, song and conversation. Everything will be there. Understanding the meaning, decoding में आएगा understanding the meaning, and then construction, creating their own sentences, or you can say the short sentence. Next stage is confirmation and fluency. Around the stage 7 to 8 years, आपकी fluency, reading fluency भी develop होती है. आप अच्छे से words को read कर पाते हो. Recognize pattern in words. किस pattern में words हैं proper. Check meaning and senses. Sentence meaningful है कि नहीं, कुछ mistake तो नहीं है, कोई word मैंने गलत तो नहीं कर दिया, आगे पीछे तो नहीं है. तो meaningful sentence is there during the stage. Knows a stock of sight words. तो कुछ साइट वर्ड्स ऐसे होते हैं आज भी कहीं लिखे हो, हम इजीली रीड कर लेते हैं, हमें स्पेल आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो एट दिस स्टेज, फ्लुएंसी स्टेज, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो बच्चा इतना ऐसे सीख जाएगा लाइक अ साइट वर्ड कि वो जहां भी लिखा हो वो इजीली रीड कर पाए. इवन ही इज रीडिंग द सेंटेंस, तो बाकी वर्ड्स में मे बी टाइम लग सकता है. सम वर्ड्स ही कैन क्विकली रिकॉग्नाइज. दैट आर stock of sight words. Next stage will be there, reading for learning the new. Okay, तो नई चीजें सीखने के लिए he is reading. अभी तक we are reading just to learn the things. Now uses reading for learning. नई चीजें सीखने के लिए, new concept सीखने के लिए he is reading. Applies reading strategies. Okay, so different strategies read करने के लिए, to read the story or read the chapter. And during this stage their vocabulary also expands. जब new चीजें सीखने के लिए हम encourage होते हैं तो even we grasp new word as well. तो vocabulary भी इस stage पे 9 to 13 years में increase होती है. Comprehends from a singular point of view. तो इस स्टेज पे सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉम्प्रिहेंड कर सकता है द होल चैप्टर और स्टोरी, whatever he is reading. Increase pleasure in language use. So he feels good using the language at this stage. Next is multiple viewpoint, 14 to 18 age. तो इसमें क्या होगा, पहले वाली स्टेज में क्या था, सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू था, है ना. नाउ सेम चीज के लिए वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू
वो कॉम्प्रिहेंड कर सकेगा कि आई एम रीडिंग दिस, इसका ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। एनालाइज व्हाट इज रेड, हर चीज को एनालाइज करेगा, रिएक्ट क्रिटिकली टू द टेक्स्ट, बहुत डीपली अंडरस्टैंड करेगा, है ना। डील्स विद लेयर्स ऑफ फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना चाहेगा इस स्टेज में, 14 to 18 ईयर्स एज। जी नेक्स्ट स्लाइड। This is the last stage, construction and reconstruction. 18 or above 18 years. Develop a well-rounded view of the world through reading. है ना, तो वर्ल्ड के बारे में पूरा डिफरेंट व्यू वो क्रिएट करेगा, डेवलप कर लेगा पूरे वर्ल्ड के बारे में डिफरेंट, ओनली थ्रू रीडिंग, है ना। सिर्फ रीडिंग करने से ही वो समझ जाएगा वर्ल्ड के बारे में। परसीव oneself as a competent reader and writer, मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट होगा that he can read and write nicely at this stage. Okay, before reading activities, what we need to do. Stages are done, हमें पता चल गया कौन सी स्टेज में क्या क्या होता है। So now, before reading activities, start करने से पहले what we can do. तो यूजुअली हम बुक लेते हैं, हम बस टर्न करते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो व्हाट वी कैन डू बिफोर दैट, स्टडी द कवर पेज, लुक एट द कवर पेज ऑफ द बुक। बुक का नाम क्या है, ऑथर कौन है, क्या क्या पिक्चर है बुक पे, बुक का कवर वी कैन चेक, है ना। After that, read the synopsis and guess what will be there inside. तो usually synopsis, I think last back side small synopsis होता है, बहुत short में briefly लिखा होता है what will be there in the book, है ना। तो हम वो synopsis read करके guess कर सकते हैं, guess बच्चे को बोल सकते हैं इस book में क्या होने वाला है ना। We can do that. तो those who are very मतलब those who are very into the book reading thing, वो करते हैं, वो रीड करते हैं before getting any book, but जो इतना नहीं है रीडिंग में वो नहीं करते, right? So we can develop this thing for ourselves also. If we are getting a new book, हम उसका synopsis पढ़ सकते हैं, उसमें क्या होगा। Read the contents the page and predict more about the book. Content read करो, the chapter page, वहाँ पे सारे कंटेंट्स होते हैं, इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है। वी कैन रीड दैट और उसके बाद हम सोच सकते हैं, बच्चे के साथ डिस्कस कर सकते हैं कंटेंट्स पढ़ के कि इस बुक में और क्या क्या हो सकता है। दिस इज सो नाइस, हम सबको करना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड। ओके, बिफोर रीडिंग अगेन प्रेडिक्ट द एंडिंग। आपने बुक ले लिया, आपने सिनॉप्सिस पढ़ लिया, आपने कंटेंट रीड कर लिया, नाउ एंड में क्या होगा इस बुक में, ये भी पूछ सकते हैं हम। रीच कंक्लूजन्स, अगर हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम बीच में ही हम कंक्लूड कर ले, मतलब कंक्लूजन्स पे आ जाए, आगे क्या होगा, क्या लगता है आपको, है ना। वी कैन डिस्कस दैट, हैव कन्वर्सेशन अबाउट द बुक इफ बिफोर रीडिंग। ओके, रीड करने से पहले आपको कैसी लग रही है ये बुक, क्या लगता है इसकी स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग होगी, तो हैव कन्वर्सेशन अबाउट इट। दिस इज बिफोर रीडिंग एंड नाउ ड्यूरिंग रीडिंग, जब हम रीड कर रहे हैं, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर एवरी फ्यू पेजेस कीप कनेक्टिंग द कंटेंट। ओके, हमने 1-2 पेजेस पढ़े, उसके बाद डिस्कस इट, रिलेट कर पाए बच्चा, एंड देन अगेन प्रिडिक्टिंग, अब क्या लगता है इस सीन के, अब क्या होगा इस स्टोरी में, है ना। आफ्टर 2-3 पेजेस मेक अ माइंड मैप और फ्लो चार्ट और अ सीक्वेंस चेन टू रिमेम्बर द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द स्टोरी। तो माइंड मैपिंग कर सकते हैं हम, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं,
सेंटर में हमने टॉपिक लिखा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है वो साइड में क्लाउड्स में हमने ऐड कर दिए। तो हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं बच्चे के साथ मिलके। और व्हाट वी कैन डू, ये हमने एक्टिविटी मेमोरी गेम्स में भी करी है, सीक्वेंस चेन, है ना। पिक्चर्स, डिफरेंट पिक्चर्स बना दी स्टोरी की, सीक्वेंसिंग गेम कि फर्स्ट सीन कौन सा है, सेकंड क्या आएगा, थर्ड क्या आएगा। तो दिस इज पार्ट ऑफ प्री रीडिंग। एंड ड्यूरिंग रीडिंग एक्टिविटी हैव वोकैबुलरी गेम्स। तो जो हमने वर्ड्स रीड करे हैं उससे रिलेटेड आप गेम्स कर सकते हो। यू कैन सिलेक्ट द वर्ड आउट ऑफ इट, है ना। वर्ड सर्च कर सकते हैं हम बुक में से। मेक अ रिकॉर्ड ऑफ क्वेश्चन यू हैव वाइल रीडिंग, कि जब हम वो चैप्टर या स्टोरी रीड कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके माइंड में, बच्चे के माइंड में, उसे नोट डाउन कर लो, है ना। और एंड में चेक करो, व्हेन योर बुक इज फिनिश, एंड में चेक करो क्या हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो नाउ ड्यूरिंग रीडिंग टाइम इज डन। नाउ आफ्टर रीडिंग एक्टिविटीज, अब आपने बुक पढ़ ली, स्टोरी इज डन। Complete the mind map or flow chart. You can see in the picture. Okay. और सीक्वेंस चेन जो भी आप बना रहे हो स्टोरीज का, वो आप सीक्वेंस चेन और वो कंप्लीट करो आफ्टर रीडिंग द बुक। एड अ न्यू सीन और रीराइट द एंडिंग। ओके, तो हम बच्चे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अगर इस स्टोरी में ऐसा हुआ है, अगर हम कुछ और सोचे तो क्या हो सकता है, कैन वी चेंज द एंडिंग। और अगर हमें कुछ न्यू सीन ऐड करना है, हम क्या करें ऐड, तो वी कैन डू दैट। Summarize in your own word. Okay, आप summarize करके बता सकते हो। Even encourage the child to summarize the story. हमने कौन सी स्टोरी पढ़ी थी, क्या हुआ था उसमें, can you tell me again? And tell about the book to a friend. Okay, so you can encourage the child to share it with others. कि I have read this book today. It is so good. इसमें ये हुआ था, इसकी स्टोरी ऐसी थी, anything. Importance of stories. One of the most important activities to be developed. So storytelling is very important. तो we always live in the world of stories, है ना। हमारे माइंड में हमेशा स्टोरीज चलती रहती है, किसी ने हमें कुछ बताया भी है तो वो भी स्टोरी फॉर्म में हमारे माइंड में चलता रहता है। स्टोरी, पिक्चर्स, एवरीथिंग इज देयर। तो स्टोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स। तो स्टोरी हम भी बताएं बच्चों को, इवन encourage them to create their own story. Let's make them more expressive, है ना। तो हम scribbling के थ्रू भी करवा सकते हैं स्टोरी, और they can tell with words. So practical tips for you all: play vocabulary games, make slips of different words, paste it here or there, and we can match the words with the objects like this. Have conversation about the books. Books के बारे में बात करो, है ना। आज कौन सी बुक रीड करेंगे, लास्ट टाइम हमने कौन सी बुक रीड करी थी। Provide children the reason to read, है ना। उनको encourage करो, उनके पास एक रीजन होना चाहिए। जैसे हमारे प्ले टाइम इतना इंटरेस्टिंग होता है, ऐसे ही हमारा रीडिंग टाइम होना चाहिए, ताकि वो इंटरेस्ट ले टू रीड। Make reading enjoyable, है ना। Provide opportunities to improve language skills. तो लैंग्वेज स्किल्स कब डेवलप होंगे, जब बच्चा शेयर करेगा what he or she is reading, about the story, about the book, anything. Provide age appropriate material, age appropriate and again child friendly, जैसे बेबी बुक्स होती है, तो बच्चों के लिए आपके पास बेबी बुक्स होनी चाहिए। Provide print rich environment. हर जगह आपके पास printed charts you can have, posters you can have, the word cards you can have everywhere. No? So these are some practical tips. I think we can keep till here today.
तो हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। अभी कुछ बाकी है प्रेजेंटेशन, विल डू इट नेक्स्ट वीक क्योंकि 9:30 हो गया है। आई होप अभी तक आज जितना सीखा, जितना सुना आपने, वो थोड़ा आप अप्लाई करें, और ज्यादा आप कर रहे हैं ऑलरेडी, थोड़ा और उसको अप्लाई कर पाए। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बनाना बहुत जरूरी है घर के अंदर, रीडिंग में इंटरेस्ट रखने के लिए, कंटिन्यू रहने के लिए। तो जितनी भी चीजें हैं, जैसे कई पेरेंट्स ने लेबल कर दिया है घर के अंदर, तो देख देख के, और कुछ आप अपनी भी क्रिएट कर सकते हैं रीडिंग गेम्स, जैसे वोकैबुलरी गेम्स हो गई ना, कि मैं तो जहाँ पे बलराम लिखा है, मैं तो बलराम जी के पास खड़ी हूँ, आप उधर नित्यानंद के पास जाके खड़े हो जाइए, जहाँ नित्यानंद लिखा है बच्चे को। तो वो आप कॉन्शियसली रीड नहीं करवा रहे हो। रीडिंग बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है, सिर्फ हमको ये नहीं बोलना है ये पढ़ो क्या लिखा है, ठीक, हम ये वाली स्लिप है, ये वहां दे दो, देखो पापा पढ़ते क्या उसमें निकलेगा ना, और अपना शो करना कि मुझे बुक्स पढ़ना कितना अच्छा लग रहा है। तो बच्चे कॉपी कैट्स हैं, छोटे बच्चे, दे विल जस्ट फॉलो यू। इफ यू आर सेइंग कि मुझे ये वाली बुक पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो बच्चा भी रिलेट करके कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा। तो एटमॉस्फियर रीडिंग का बनाना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि हम कर सकते हैं। वो 4 चीजें जो शुरू में हमने सीखी थी, कैसे डिकोड कर रहे हैं बच्चे, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं बच्चे, मेक सेंस कर रहे हैं, एक वो कोड्स हैं जो बच्चों को हमें डिकोड करवाना है, उतना इंटरेस्ट बनाना है लैंग्वेज में। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंग्लिश बोलने में हमको हेजिटेशन होती है। उसका आंसर ये है कि क्या हमें तमिल, तेलुगु, जापानीज, चाइनीज बोलने में हेजिटेशन होती है? ये वाली लैंग्वेजेस बोलने में हमको हेजिटेशन होती है? यस और नो? माता जी जो लैंग्वेज तमिल तेलुगु तो आता ही नहीं है। हाँ, जो बिल्कुल आती नहीं है वहां पे कोई हेजिटेशन नहीं होती। जहाँ थोड़ी थोड़ी आती है ना, वहाँ हेजिटेशन आती है। तो हेजिटेशन को कैसे रिमूव करें? बहुत सिंपल 2 तरीके हैं। हेजिटेशन इसलिए आ रही है जब हमें लग रहा है कि सामने वाला हमसे ज्यादा जानता है लैंग्वेज, और अगर मैं गलत बोल दूंगी तो वो सामने वाला इज गोइंग टू जज मी। जजमेंट के डर से हेजिटेशन आता है, ठीक। तो जहां पे जजमेंट नहीं है वहां हेजिटेशन भी नहीं होगा। 2 चीजें ऐसी हम कर सकते हैं जहाँ पे हमें हेजिटेशन नहीं है, और हम खुल के लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वो 2 चीजें क्या है? यू कैन राइट अ डायरी which nobody is going to read, your personal diary. Write in the language you want to learn and practice. And second thing is, एक ऐसी सीक्रेट प्लेस है जहाँ कोई भी नहीं आ सकता है, और कोई भी नहीं जान सकता कि आप कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हो। वो कौन सी जगह है? पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी नहीं आ सकता। आपके गुरु महाराज शायद आ सकते हैं, आ ही सकते हैं, बाकी और कोई नहीं आ सकता। वो है हमारे अपने इमेजिनेशन में, इन आवर माइंड। इन आवर माइंड। आपकी जो थॉट्स हैं, अगर आप थॉट्स की लैंग्वेज चेंज कर दोगे, आप सोचना शुरू कर दो उस लैंग्वेज में, आप उस लैंग्वेज में बोलने लग जाओगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। सो इन योर थॉट्स, इन योर डायरी, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये जो हेजिटेशन वाली चीज है ये खत्म हो जाती है। ओके, सो आई होप आज का सेशन यूजफुल रहा होगा। We will meet in the next session on next Wednesday. We'll try to finish this topic and try to take out the activities from here which you can practically implement at home. That okay? Any questions till now?
माता जी एक लास्ट क्वेश्चन। माता जी जैसे वो लेबलिंग हमने की, लेबल्स पर फिक्स लगा के लगा दिए थे वॉल्स पर, बट उसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं उससे? हाँ थोड़ा हाँ थोड़ा ना स्टार्ट हो गया हाँ, वो। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, बहुत कुछ, वो सारी चीजें करनी है तो एक चीज है लेबलिंग, बाकी सब आपको करना है। माता जी जैसे कोई आइडिया या कुछ, कैसे आप अगर कोई भेज पाए कोई घर का डिजाइन या वॉल को किस तरीके से करें? विश्वम्बर से पूछो, एक्चुअली यस, विश्वम्बर से पूछो। और एक बीच में मैंने एक्टिविटी कराई थी, उसके फोटोज नहीं आई थी ग्रुप में, कोलाज, एक वर्ड वॉल बना के उधर कोलाज बना दो, अगर आप ऐसे कर सकते हो तो एक वॉल डेडिकेटेड टू रीडिंग, है ना। कोलाज में उसमें हर कलर से वर्ड्स लिखे हो, हर टाइप के वर्ड्स लिखे हो, बड़े छोटे, हर डिजाइन में हर अलग अलग फॉन्ट में लिखे हो। फॉन्ट नहीं, फॉन्ट हम चेंज नहीं कर सकते, सॉरी, फॉन्ट हमें एक ही रखना है। क्या ये वाले काम आप कर सकते हो, और वहां पे आप चेंज कर सकते हो वर्ड्स। और सबसे इजी तरीका है ब्लू टैक यूज करने के लिए। ब्लू टैक से दीवार भी खराब नहीं होती, सेफ भी है, बच्चा भी यूज कर सकता है अगर खाए नहीं तो। तो ये आप कर सकते हो। 3+ तो बच्चों के साथ ही करना ही चाहिए। दीदी माती जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्णा। जी मैंने आज वर्ड कार्ड्स बनाए थे, आई डोंट नो ये नंदगी के लिए अप्रोप्रिएट रहेंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, लाइक ऐसे। यस यस यस, माता जी आपकी परफेक्ट आवाज है। नहीं आ रही। यस माती जी, परफेक्ट, यू हैव टू मेक दिस, ये तो बताया ही था आवाज आपको नहीं बनाना। किसी को भी नहीं आ रही है, आप प्रीति माता जी को नहीं आ रही? आ रही हाँ माता नहीं जी। माता जी। माता जी माता पिक्चर्स नहीं बनाया करें ना, बस लिखें, राइट? हाँ हाँ, पिक्चर भी एकदम मना नहीं है, बना सकते हो साथ में, लेकिन बेटर है कि आपको जिस चीज पे आपको फोकस ज्यादा करना है वो करो, साइड में छोटा सा पिक्चर दे दो। लेकिन बिना पिक्चर के भी वर्ड हमें रिकॉग्नाइज करवाना है ना, तो सिर्फ वर्ड देना जरूरी है। ठीक है, गौरांगी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी एक्चुअली हमारे हमने ऐसा किया था कि हमने भी बहुत बुक्स उसको इंट्रोड्यूस करी ब्रज को, और पर हमारी इच्छा थी कि हम उसको हिंदी पहले सिखाएं, मदर लैंग्वेज आ जाएगी फिर इंग्लिश वो सीख लेगा। तो हमने जो भी इंग्लिश बुक्स खरीदी हम उसको पढ़ते थे हिंदी में ही, नॉट ट्रांसलेट बट डायरेक्टली रीड इन हिंदी, बिकॉज वी कैन इन द माइंड वी ट्रांसलेट एंड वी टेल हिम इन हिंदी। बट अभी वो हिंदी से इतना कंफर्टेबल हो गया है कि अब मैं वही अगर स्टोरी इंग्लिश में पढ़ना चाहूँ तो वो बोलता है मुझे हिंदी में बताओ। तो कैसे स्विच करें माता जी, मतलब समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी फिर इंग्लिश जैसे अभी गोलोका किड्स के हम जो स्टोरीज पढ़ रही हूँ वो बिकॉज इट्स वेरी सिंपल इंग्लिश, तो वो मैं इंग्लिश में ही पढ़ती हूँ और वो समझता है। ऐसा नहीं है उसको इंग्लिश, ही इज पिकिंग अप इंग्लिश नाइसली, बट stories or anything which he really wants to understand and listen, he wants in Hindi because he knows he's fluent in that language. तो अभी कैसे ट्रांजिशन करना चाहिए दूसरे लैंग्वेज में? ट्रांजिशन नहीं है, ऐड कर रहे हो आप एक और लैंग्वेज, दूसरी को हटा नहीं रहे हो, एक और लैंग्वेज ऐड कर रहे हो, ठीक है। और बच्चे का इंटरेस्ट आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट है, तो मना नहीं करना है कि मैं हिंदी में नहीं सुनाऊंगी,
तो ओके, आपको हिंदी में सुनना है, राइट, मैं हिंदी में ही सुना दूंगी। बट देयर वॉज किंग ऋषभ एंड यू नो व्हाट डिड ही डू, यू नो व्हाट डिड ही डू, ऐसे करके मतलब जो इंग्लिश वाला जो सेंटेंस जो आप देना चाह रहे हो बच्चे को, उसमें उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना दो। हिंदी में भी बोल रहे हो, वो हिंदी तो आ ही गई, लैंग्वेज तो आ ही गई, जो आपका पर्पस ऑब्जेक्टिव था वो तो फुलफिल हो ही गया। ठीक है, अभी हम थर्ड लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, संस्कृत। फ्राइडे को हमारी संस्कृत क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, मासुंदी गौरांगी माती जी अभी ग्रुप में मैसेज लिख रही थी संस्कृत में, क्योंकि अभी वो इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल भूल गई है, तो वो अब हमसे भी संस्कृत में ही बात करेंगी। संचारी माता जी हैज फॉरगॉटन ऑल अदर लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, और ऐसी मासुंदी गौरांगी माता जी बाकी लैंग्वेजेस भूल गई हैं, तो ये दोनों अब अपनी लैंग्वेज में ही बात करेंगे। ठीक है, अगर किसी ने पकड़ा इनको हिंदी बोलते हुए या कोई और लैंग्वेज बोलते हुए, तो आप मेरे को कंप्लेन कर देना। ठीक है, दिस इज द वे वी लर्न द लैंग्वेज एक्चुअली। और आप देखना थोड़े टाइम बाद हमारे सब बच्चे संस्कृत में बोलने लगेंगे। हमें एक पर्सन चाहिए घर के अंदर जो वो लैंग्वेज बोलता हो, दैट इज इनफ। जो भी लैंग्वेज आप बच्चे को सिखाना चाहते हो, वो लैंग्वेज का पर्सन के अराउंड बच्चे को छोड़ दो, बच्चा वो लैंग्वेज पिक कर लेता है। यस, लावंगा मंजरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अबाउट द वर्ड कार्ड्स, तो मैंने वो आज से बनाना शुरू किए हैं, तो मुझे बस एक दो चीजें पूछनी थी कि एक, इज इट एनी मोर हेल्पफुल कि वो कोरिलेट करके करें, जैसे डोर पे डोर का कार्ड वगैरह, या कोई भी कहीं भी कुछ लगाए, कुछ ऐसे इंडिकेशन हो उस वर्ड के मीनिंग का, और इट डजंट मैटर टू? दोनों कर सकते हो आप। अच्छा, मिक्स भी कर सकते हैं? हाँ, दोनों कर सकते ओके। और क्योंकि दिव्यकेली doesn't know the small letters yet, I wrote it in all caps. Is that okay, or would you want us to write it in हो। sentence case, like title case? Now it depends on you how you are introducing it. I would say introduce small letters अच्छा also. हाँ अच्छा, क्योंकि अभी तक तो इंट्रोड्यूस किए नहीं है मैंने, हाँ, तो like I was कोई even कोई प्रॉब्लम नहीं है। okay. I even asked Sanchari Mataji in that phonograms class, should I be telling her that this is R, like small r and all? So she said, no need as of now. So I've not told her, like I just like let her be with the sounds. So I've not like told her that this is R, this is small लेकिन r. जब आप फोनोग्राम्स करा रहे हो तो स्मॉल लेटर्स आ रहे हैं ना उसमें, हमारे हाँ, कांच small में letters आ स्मॉल रहे हैं। लेटर्स में बने हुए हैं। जो हाँ संचारी माता जी दिखा रही है वो स्मॉल लेटर्स दिखा रही है। हाँ, तो is it important for her to know that this is R and hence the sound is like this? मैं मेरा एक्चुअली हम जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिर्फ साउंड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसीलिए I'm not done anything till you tell me further what to do about the small letters. हाँ, if you just go by whatever the classes are going on, just follow हाँ them as it is, तो वो ग्रेजुअल सबके साथ धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि हाँ उसमें इंक्लूडेड है हाँ ना, क्लासेस में इंक्लूडेड है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हमने भी सबने फोनोग्राम सीखा था 2010 में। संचारी माता जी was also there, I was also there in the same class in Vrindavan. We were learning phonograms along with our children. उस क्लास में हर एज के डिवोटीज होते थे, 3-4 साल के बच्चे भी होते थे, और 80 इयर्स वाली माता जी भी होती थी। हम सब साथ में सीखते थे फोनोग्राम्स। तो हमने ऐसे ही सीखा, और यही हेल्पफुल रहा कि फर्स्ट वी जस्ट लर्न द साउंड्स। और अगर आपने पहले से बता दिया है कि ये ए है, ये आर है, ये टी है, ये जेड है, तो वो बच्चा अपने आप कोरिलेट करता रहेगा। उसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ वो लेटर दिखा के, जैसे संचारी माता जी करा रही है, जस्ट जस्ट ट्राई टू फॉलो दैट, क्योंकि अभी 70 या फोनोग्राम्स में भी टाइम लगता है। हाँ हाँ,
अभी अभी हमारा तो सुबह वाला तो अभी शुरू हुआ है। हाँ, तो वो अम, 70 आप कर लोगे, उसमें टाइम लगेगा। तो जब 70 हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी चीजें कि हाउ इजी इट इज फॉर चिल्ड्रन टू मेक वर्ड्स, रीड वर्ड्स। yeah. बहुत इजी हो जाएगा, आपको कभी भी स्पेलिंग सिखाने की जरूरत नहीं होगी। अभी ही वो सारा मास्टरी हो जाएगी बच्चों की। तो अभी जो वर्ड कार्ड मैं बना रही हूँ उसको उसमें छोटे लेटर्स भी डाल दूँ ना? डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। क्योंकि उसमें छोटे लेटर्स तो आ ही रहे ना, अब जो कार्ड्स संचारी माता जी यूज कर रही है उसमें आ रहे हैं ना, तो बच्चा हाँ तो देख रहा है ऑलरेडी छोटे हाँ लेटर्स। हाँ, ठीक है, थैंक यू। दीक्षा माता जी। हाँ, तो ये करता है क्वेश्चन। मैं ये कह रही जैसे आयतविक ना अभी मतलब लेटर आइडेंटिफाई नहीं करता, मतलब कुछ हद तक ही कर पाता है, तो क्या अगर मैं ऐसे में उसको वर्ड कार्ड मतलब बना के देती हूँ तो वर्ड्स वो ही देने सही हैं है? आपको, लेटर्स नहीं देना। फर्स्ट स्टेज ओके वही है, ओके ओके। आपको पूरा वर्ड लिख के देना है। आप ये वर्ड दिखा दो, ये हैप्पी लिखा है, ये पावरफुल लिखा है, ये कृष्णा लिखा है, ये बलराम लिखा है, बस। ओके बच्चे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बहुत छोटी स्टेज में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इस्तेमाल को भी जी। माता जी, जैसे आपने बताया बिफोर 5 इंट्रोड्यूस मेनी लैंग्वेजेस फ्रॉम अ स्पोकन पर्सपेक्टिव, हम वो करने को कोशिश कर रहे हैं, पर व्हाट इज द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑन रीडिंग? बिकॉज आज का जो सेशन के रिलेटेड है क्वेश्चन, क्योंकि जैसे हम स्कूल्स में पढ़े हैं, on the same day we had parallel sessions. I mean, especially in South India, we learn English, Hindi, Tamil, like 3-4 languages, reading, writing. So that has happened parallelly over few years. So abhi पर हमारा spoken emphasis है, पर predominantly for now the reading would be in English only, because as parents we are more comfortable in English. कर पाएंगे क्या? क्योंकि मतलब संस्कृत we are not fluent, और हिंदी we are not able to write and read, we are not very comfortable. So what should be the approach for that, Mataji? So this is what I said, that you have one person who is fluent in that particular language. So even for reading, Yes, why not? like vocabulary reading. Okay. You will read and you will write and you will introduce the language that you know, and that is okay. Do that. But if you can introduce some person who will teach another language, who will speak and read and write some other language, why not do that if there is an opportunity? Because till 5 years of age, language grasping ability is very, very high. You can introduce as many languages as you want. Child will learn all languages. Okay. You have that opportunity, you introduce. Otherwise, whatever you are doing, just keep doing that. Very simple. Okay. Thank you. So we'll just stop here and we'll continue this discussion next Wednesday. Okay? Thank you, everyone. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, साधु प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी। प्रणाम माता जी।